Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the exercise point 2. As you know that in previous video exercise point 1 has been finished. Now today we will discuss the second exercise of this chapter 8.2, in which we have the more than one curve. Suppose a parabola, then a line, a ellipse, and then a parabola also. So basically we have the combination of two figure in which in the exercise of 8.2, and we have to find out the area of these figures. Suppose we have a parabola as well as ellipse. Clear? We have a parabola as well as a circle. So we have more than one figure in the question of exercise 8.2. Clear? तो चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट उन सभी को, और जल्दी से आइए आप क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 371. इन क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² इज इक्वल्स टू 9, विच इज इंटीरियर to the parabola x² is equals to 4y. So first of all we have to prepare the figure in which we have a parabola as well as a circle. Clear? And after preparing the figure we can find the required area. Now exercise 8.2 and question number 1. We have equation 4x² + 4y² is equals to 9. First of all you have to identify that which curve contain such type of equation. Clear? Now divide it by 4 and we have x² + y² is equals to 9/4. So you can observe here that coefficient of x² and y² is 1 1, and in right hand side we have 9/4. We can write it also as a x minus 0 to the whole power 2 plus y minus 0 to the whole power 2 is equals to 3/2 the whole power 2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर? चलिए, तो अब आप जब इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं तो उसकी कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. वो क्यों कर रहे हैं? देखो सर्कल कब बनेगा. सर्कल यदि हमें बनाना है तो हमें सेंटर पता होना चाहिए, हमें आर मालूम होनी चाहिए. ठीक है? सो कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल which is x minus x1 to the whole power 2. Compare it with x minus x1 to the whole power 2 plus y minus y1 to the whole power 2 is equals to r². So x1 is 0, y1 is also 0, and r is 3/2. It means center is at origin 0 0 with the radius 3/2. क्लियर? चलिए, ये तो हुआ सर्कल की इंफॉर्मेशन कि सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, सर्कल की रेडियस कहाँ होगी. अब बात कर लेते हैं हम रिगार्डिंग टू द पैराबोला. वो क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं कि पैराबोला है हमारे पास x² is equals to 4y. क्लियर? तो चलिए अब बनाते हैं फिगर को. फिगर कैसे बनेगी? सबसे पहले तो बनाएंगे सर्कल. तो ये तो हो गया हमारा सर्कल. So this is origin of as well as center of the circle also, and this is the radius which is 3/2. So center is 0 0
point is 3/2, 0. In this figure we have a parabola of x square is equals to 4ay type and which will be open in the upward direction in a positive direction of y axis above from the x axis like this. So we have this figure. Now our main aim is to find the area which is inside this circle as well as parabola which is common area. ठीक है, आपको वो एरिया बताना है जो पैराबोला which is interior to the parabola. ठीक है, तो ध्यान से सोच के बताइए कौन सा एरिया हमें निकालना पड़ेगा। जल्दी सोचिए और बताइए सोच करके मुझे वो कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं। Find the area which is interior to the parabola. हमें बेसिकली निकालना है ये एरिया जो पैराबोला के अंदर है, ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये एरिया सिमेट्रिकल है, जितना y एक्सिस के लेफ्ट में है उतना ही राइट में है, तो हम सिर्फ एक एरिया निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा कंप्लीट एरिया। ठीक है, अब ये एरिया लाई कर रहा है कंप्लीटली y एक्सिस पर। ठीक, तो हम डालेंगे यहाँ पे स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल वे में लाइक दिस। ठीक है, अब ये स्ट्रिप जब मूव करती हुई चलेगी तो कुछ देर के बाद क्या होगा, टचिंग कर्व चेंज होने वाला है। जैसे ये स्ट्रिप जब चलती रहेगी तो यहाँ तक, जहाँ पे इस पैराबोला ने कट किया है सर्कल को, उस पॉइंट तक को टच होना है पैराबोला, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद जब स्ट्रिप ऊपर चलेगी तो टच होना है सर्कल। तो ध्यान रहे यदि आपके एरिया में ऐसा हो रहा है कि एक बार स्ट्रिप टच कर रही है किसी अनदर कर्व को, दूसरी बार टच कर रही है किसी दूसरे कर्व को, तो उस एरिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक बार तो निकालेंगे एरिया हम OAB, दूसरी बार निकालेंगे BACB। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट A इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पैराबोला एज वेल एज सर्कल। लाइन BA तक जब आप स्ट्रिप को लेके चलेंगे तो स्ट्रिप का एक एंड टच करेगा पैराबोला को, जबकि दूसरा एंड उसका y एक्सिस पर मूव करता रहेगा। फ्रॉम द y एक्सिस यू कैन फाइंड द लोअर एंड अपर लिमिट, एंड फ्रॉम द कर्व टचिंग कर्व यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, क्योंकि आपकी स्ट्रिप जाएगी हॉरिजॉन्टल, सो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप विल बी x dy। इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो x dy होगा। दिस विल बी x एंड दिस विल बी dy, सो x dy विल बी द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। क्लियर? चलिए आगे, ये हो गया x और इसकी जो विड्थ है वो हो जाएगी dy। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रिप है अपना एरिया x dy लेकर के एक बार तो जाएगी 0 से b तक, दूसरी बार जाएगी b से लेकर के c तक। ठीक, फर्स्ट पार्ट में जो इसकी लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी और अपर लिमिट हो जाएगी पॉइंट B पर। दूसरे पार्ट में B हो जाएगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएगी C पर, क्योंकि स्ट्रिप फिर से चलेगी टच करते हुए सर्कल को। तो इस तरह से ये दो पार्ट में होगा। अब आप सुने बात ध्यान से, पॉइंट B फर्स्ट रीजन के लिए अपर लिमिट है, लेकिन सेकंड रीजन के लिए वो लोअर लिमिट है।
तो हमें सबसे पहले पॉइंट बी पर y की वैल्यू को निकालना पड़ेगा कि पॉइंट बी पर y की वैल्यू क्या होगी। सीधी सी बात है, जो पॉइंट ए में y पार्ट होगा उतना ही पॉइंट बी पर y पार्ट होगा। क्लियर? क्योंकि लाइन बी ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? सो लाइन बी ए पर जो y की वैल्यू होगी वो सभी जगह एक ही होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ए, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमें b की वैल्यू नहीं मिलेगी कि पॉइंट b पर y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो पहले आप इतना कर लें, फिर मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जो कि मुझे पार्ट रफ करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड वाला पिक्चर रहेगी एज इट इज। जल्दी करें। और आज आप इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करें। इसकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब देखिए, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ए। चलिए मेरे पास में है x² = 4y और सर्कल मेरे पास में है x² + y² 9/4। नाउ our main aim is to find the value of only y, क्योंकि जितना पॉइंट a में y होगा उतना ही पॉइंट b पर y पार्ट होगा। तो सिर्फ हम यहाँ से y निकालेंगे, हम x नहीं निकालेंगे, हमारे पास में टाइम की वैल्यू शॉर्टेज है। So replace the value of x² into this equation and we have 4y + y² = 9/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16y + 4y² = 9। It is equation quadratic। 4y² + 16y - 9, 9 4 जा 36। अब 36 के आप करें ऐसे मतलब इनको माइनस करें तो 16 मिल जाए। सोचिए जरा आप, 36 कैसे फैक्टर जिनको आप मल्टीप्लाई करें 36 मिले, बट उनको जब आप ऐड करें सॉरी माइनस करें तो 16 मिल जाए। सोचिए फटाफट, सॉल्व कीजिए इसको। यहां से y की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, y की वैल्यू यहां से जितनी भी आएगी उतना ही हमारा पॉइंट b पर y पार्ट होगा। मान लीजिए यहां से y की वैल्यू आती है 2, तो पॉइंट b पर हो जाएगा y2। और c पर कितना है, पॉइंट c कितना है, पॉइंट c मेरे पास है 0,3/2। ठीक है, क्योंकि 3/2 उसकी रेडियस सर्कल की जो रेडियस है वो 3/2 है। सो इट इज 3/2, इट इज 3/2। पॉइंट सी इज 0,3/2। तो सीधी सी बात है, जो आपकी स्ट्रिप है वो जाएगी 0 से लेके b तक, फिर जाएगी b से लेके c तक। तो आप क्या करेंगे, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। यहां से y निकाल लेना। मान लेता हूं कि y2 आता है, तो 0 से जाएंगे 2 तक, फिर 2 से जाएंगे 3/2 तक। सीधी सी बात है, लेकिन 2 नहीं आएगा क्योंकि ये 1.5 है, 3/2 तो 1.5 से कम ही आएगी इस पॉइंट b की वैल्यू। यदि यहाँ फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ पे सीधे द्विचार्य अप्लाई कर लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। जो रिक्वायर्ड एरिया है मेरे पास में वो आ जाएगा OAB + BAC। OAB + BAC।
उसके बाद में आप ले लेंगे इसकी लिमिट y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 0 है, जितनी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो ऊपर रख देना, प्लस फिर इसके लिए आ जाएगा स्ट्रिप हो जाएगी x dy, फिर स्ट्रिप टच कर रही है इस पैराबोला को, तो यहाँ से निकाल लेना x की वैल्यू आएगी यहाँ से 2√y, वो 2√y रख देना आप इधर। लेकिन जब स्ट्रिप टच करेगी सर्कल को तो वहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, वहां से x की वैल्यू आएगी 9/4 माइनस वाई स्क्वायर का अंडररूट, वो रख देना आप, तो तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, and in question number 2 we have the two equation of the circle. First is x minus 1 to the whole power 2 plus y square is equals to 1, and second is x square plus y square is equals to 1. Both equation is of the circle. चलिए सबसे पहले हम इन दोनों सर्कल का सेंटर एज वेल एज रेडियस निकालेंगे। This can be written in the form of square of x minus 1 plus square of y minus 0 equals to 1, and 1 is the square of 1. Now compare it with x minus x1 power 2 plus y minus y1 to the power 2 is equals to r square. So by this center x1 is 1, y1 is 0, it means center is 1,0 and radius is equals to 1. क्लियर? तो ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट कर्व की। फर्स्ट कर्व हमारा सर्कल है और सर्कल की इक्वेशन से हमने निकाल लिया सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर आ गया 1,0 और रही बात रेडियस की, तो रेडियस आ गई मेरे पास में 1। अब हम बात करते हैं सेकंड सर्कल की। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन है सर्कल की, इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 0 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y माइनस 0 इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 1। नाउ अगेन कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज x minus x1 power 2 plus y minus y1 power 2 is equals to r square। क्लियर? तो यहां से x1 आएगा मेरे पास 0, y1 आएगा 0 और r आ जाएगा 1। सो सेंटर हो गया x1 y1, इट मींस 0 0 और r हो गया 1 मींस रेडियस। क्लियर? इस तरह से अब हमें आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों सर्कल की फुल इंफॉर्मेशन है कि उनका सेंटर कहाँ कहाँ होगा और उनकी जो रेडियस है वो कहाँ कहाँ होगी। क्लियर? तो आइए जरा निकालते हैं फटाफट। जो पहले वाला सर्कल है इसका सेंटर तो हो गया 1,0 और उसकी रेडियस है वो हो जाएगी 1। ठीक है, सो हम चलेंगे, ये हो गया मेरे पास में 1, सेंटर यहाँ पे है और उसकी जो रेडियस है वो भी 1 ही है। थोड़ा इसको बड़ा ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ तक है 1, तो ये सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये सर्कल वो है जिसका हमारे पास में जो सेंटर है
वो है 1,0 एंड रेडियस इज 1। उसके बाद चलते हैं अनदर सर्कल जिसका सेंटर है 0 0 एंड r हो गई 1। इट मींस इट विल बी रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये फिगर बन गई आपकी। फिगर में देख सकते हैं हमारे पास दो सर्कल है। एक सर्कल ही है जिसका सेंटर है 1,0, इसकी r हो गई 1। एक सर्कल ये है जिसका हमारे पास सेंटर हो गया 0 0, r हो गई 1। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। ये हमें निकालना है। अब देखो जब हमें ये एरिया निकालना है, दिस एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। जितना x एक्सिस से ऊपर है उतना ही x एक्सिस से नीचे है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि जो मेरे पास में सर्कल बना हुआ है ये सर्कल सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस एंड कंप्लीटली लाई ऑन x एक्सिस। तो हम सिर्फ निकालेंगे x एक्सिस से अपर पार्ट, सिर्फ हम इसको निकालेंगे। इसको निकाल के डबल कर देंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब इस एरिया को आप निकालेंगे तो स्ट्रिप जाएगी वर्टिकल। वर्टिकल स्ट्रिप जब चलेगी 0 से स्टार्ट करेगी और इस पॉइंट तक जाएगी। दिस इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल। तो यहां तक ये स्ट्रिप टच करते हुए जाएगी इस सर्कल को, ठीक। लेकिन इस पॉइंट के बाद टच होगा फिर ये वाला सर्कल। तो मैंने बताया था आपको अभी कि जब हमारे पास एरिया ऐसा आ जाए कि उसमें टचिंग कर्व चेंज हो रहा हो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें आप। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए परपेंडिकुलर। तो हम एक बार निकालेंगे OAB, फिर निकालेंगे BAC। क्लियर? जब हम जाएंगे OAB में तो लोअर वैल्यू होगी 0, अपर वैल्यू होगी A। और रही बात A पॉइंट की, तो A पॉइंट के लिए हम चलेंगे फिर B पॉइंट के पास। B पॉइंट में जितना x पार्ट होगा उतना ही उसके नीचे वाले पॉइंट A में x पार्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट B। पॉइंट B को निकालना है, जितना पॉइंट B में x पार्ट आएगा उतना ही A में x पार्ट मिल जाएगा। मान लीजिए पॉइंट B निकालते वक्त आपको x मिल गया 0.5, तो आप जाएंगे 0 से 0.5 तक इस एरिया में टच करते हुए इस कर्व को, और इस कर्व से निकाल लेंगे आप किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। क्यों? क्योंकि स्ट्रिप हमारी वर्टिकल है। वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया होगा y dx, जो मूव करेगा 0 से लेकर के a तक। अब y dx में आप y को रिप्लेस करना पड़ेगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप y को कर देंगे इंटीग्रेट x के रेस्पेक्ट में, नहीं हो पाएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे आप टच होने वाले कर्व से। जो टच हो रहा है कर्व वो मेरे पास ही सर्कल है, तो इस सर्कल से निकालिए y की वैल्यू। ये सर्कल कौन सा है, ये वाला है। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस x माइनस 1 टू दी होल पावर 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, वो ला के रख देना। जब चलोगे ACB में तो A बनेगी लोअर वैल्यू और C जिसमें x की वैल्यू 1 है वो बन जाएगी अपर वैल्यू। मान लीजिए A आता है 0.5, तो 0.5 विल बी लोअर लिमिट एंड 1 विल बी अपर लिमिट व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ACB। क्लियर? और जब यहाँ पे डालेंगे आप स्ट्रिप, तो वो स्ट्रिप टच करती हुई जाएगी फिर इस कर्व को, इस सर्कल को। इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक। तो यहां से निकाल लेनी है आपको y की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे ना आप इंटीग्रेशन का, वो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। याद है कुछ बात? इससे जरूरी होता है इंटीग्रेशन को पढ़ना। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेना है और ऐड करके उसका डबल कर देना, क्योंकि एक्स एक्सिस से जो नीचे वाला एरिया है वो भी तो निकालना है हमें। डबल करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करने हैं। तो आज आप बैठ करके एक्सरसाइज 8.2 को पूरा करें। बहुत ही आसान प्रोसीजर आपको मैं दोबारा बता दूं। जो कर्व दिए हुए हैं उनको बनाइए, उनको बना करके उनके बीच में जो एरिया पड़ रहा है उसको निकालिए। लेकिन ये ध्यान से देख लेना है कि जब स्ट्रिप को डालेंगे हम वर्टिकल डालें या हॉरिजॉन्टल डालें। यदि कुछ देर के बाद टचिंग कर्व चेंज हो रहा है तो उस एरिया को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लें, क्योंकि जब टचिंग कर्व चेंज होता है तो उस एरिया को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। उसको आप एक बार में निकाल नहीं सकते, उसके दो पार्ट कर लीजिए। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर यहाँ पे जो पॉइंट B है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल। So first of all calculate the area of OAB then BAC. Whenever you want to calculate the area OAB then touching curve will be the first circle, and whenever you want to calculate the area of BAC then touching curve is second circle. और टचिंग कर्व की हेल्प क्यों लेते हैं हम? क्योंकि जब हम स्ट्रिप डाल रहे हैं वर्टिकल, एरिया होगा स्ट्रिप का वाई डी एक्स, तो उस वाई डी एक्स में वाई को रिप्लेस करने के लिए हम टचिंग कर्व की हेल्प लेते हैं। टचिंग कर्व से हम निकालेंगे वाई की वैल्यू जिसको स्ट्रिप टच कर रही है। जो देखो सीधी सी बात है, स्ट्रिप के दो एंड हैं, आप भी देख रहे हैं। उस स्ट्रिप के दो एंड हैं, एक एंड तो खिसकता है हमेशा एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे, जिससे आपको मिलती है लोअर और अपर वैल्यू। क्लियर? लोअर विल बी स्टार्टिंग पॉइंट एंड अपर विल बी एंडिंग पॉइंट। रही बात उस स्ट्रिप के दूसरे एंड की, तो जो दूसरा एंड है वो कर्व को टच करता है, तो उस कर्व से आप निकालिए एक्स या वाई की वैल्यू। यदि आपकी स्ट्रिप वर्टिकल है तो स्ट्रिप का एरिया होगा वाई डी एक्स, तो आप निकालिए फिर अपने कर्व से वाई की वैल्यू। और यदि आपके स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है तो स्ट्रिप का एरिया होगा फिर वाई एक्स डी वाई, तो टचिंग कर्व से निकालिए आप एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एक्स डी वाई में एक्स को वहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा और वाई डी एक्स में वहाँ से वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज नॉट पॉसिबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ x with respect to y is not possible. क्लियर? सो इस तरह से आज आप एक्सरसाइज पॉइंट 2 करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मैं इसमें एक वीडियो और बनाऊंगा एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? उसका बाद हम डिस्कस करेंगे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी देन यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल। इट्स योर ड्यूटी।